અજય તોમરજી એમનું નામ છે અને એ આપણા ત્યાં આપણા સૌભાગ્ય ગવાણા ગામના અને આજુબાજુમાં જે લોકો દર્શન કરવા આવ્યા છે એમના પણ સૌભાગ્ય કે આપણી વચ્ચે આપણને આવા ગવાણાની અંદર લાભ મળ્યો. ખરેખર 1996 થી એટલે 25 વર્ષથી માને એમનો સેવાનો લાભ મળે છે વર્ષોથી. અને બાપુનો એક આ ધ્યેય છે રામદેવ પીરના ભક્તો અને રામદેવ પીર જે આ અત્યારે કળિયુગની અંદર સાક્ષાત પરચા પૂરે છે આપણે બધા જાણીએ છીએ. ઘણા લોકોએ અનુભવ્યા છે. લાખો રૂપિયા કરોડો રૂપિયા આપે છે. આજે સૌરાષ્ટ્રની અંદર પટેલ સમાજ જ્યારે રામદેવ પીરનો સ્તંભ ઊભો થવાનો હોય પણ બાપુ ત્યાંની જે વ્યવસ્થા રામદેવડાની એના અનુસંધાને ક્યાંય પધારતા નથી. માત્ર ને માત્ર જે આપણો નાનો સમાજ છે કે એમનું મૂળ કામ જે છે એ આપણા કચ્છના વાંઢા કોળી સમાજ, જસદણ વિછિયાના કોળી સમાજ કે વનવાસી ક્ષેત્રની જે અંદર આપણા વનવાસી બંધુઓ જેનું ક્રિશ્ચિયન મિશનરી દ્વારા ધર્માંતરણ થાય છે. હિન્દુ ધર્મમાંથી એને પોતાના ધર્મમાં લોભ લાલચ આપી અને લઈ જવાના પ્રયત્ન થાય છે. એમનું કામ એ રોકવાનું કામ છે. હિન્દુ સંસ્કૃતિ અને બાબા રામદેવનો પ્રચાર કરવાનું કામ છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં અનેક જગ્યાઓએ એ આવે છે. પણ આપણને બધાને એક વખત અહીં આવ્યા હોય બાપુ એટલે તકલીફ એ મોટી પડતી હોય છે કે એમના ફોન નંબર લઈએ પછી જ્યારે જ્યારે આપણે રામદેવના દર્શન કરવા જવાનું હોય ત્યારે પછી બાપુ છે ને એ બહુ હેરાન થાય છે. કારણ કે એમને એ કે બાપુ અમારે દર્શન કરવાના છે, મોટી લાઈન છે, અમારી વ્યવસ્થા કરજો. રામદેવડાનો એક ઇતિહાસ છે કે જે લોકો શ્રદ્ધાથી દર્શન કરવા જાય છે પછી એક દિવસ ઊભું રહેવું પડે, 2 દિવસ ઊભું રહેવું પડે. અને જે શ્રદ્ધાથી દર્શન કરે છે એને જે સાક્ષાત દર્શન થાય છે. બાપુને ફોન કરી કે ત્યાંના કોઈ લોકોને ફોન કરીને લાઈનમાં રહીએ છીએ તો દર્શન આપણા સફળ થતા નથી. એટલે બાપુ 1996 થી ગુજરાતની અંદર અલગ અલગ વિસ્તારોમાં નાના નાના વિસ્તારોની અંદર જે આપણા નાના નાના હિન્દુ પરિવારો છે એની વચ્ચે બેસવાનું કામ છે. એને કરોડોપતિ કે અબજોપતિના ત્યાં જવાની ઈચ્છા થતી નથી. અને એટલે જ આપણને આજે આ ગવાણામાં લાભ મળ્યો છે. અને એમનું મૂળ કામ મેં જેમને કીધું નાના નાના જે આપણા બંધુઓ છે એમાં રામદેવ પીરનું જે આખું મંડળ છે એમના સભ્યો છે, અનેક સંગઠનો છે એના એ અત્યારે ગુજરાતનું કામ કરે છે. સમગ્ર ગુજરાતની અંદર અનેક જગ્યાએ એમને આવા અલગ અલગ મંદિરો અને અલગ અલગ રામા મંડળો બનાવેલા છે. આપણે પણ જે લોકો બહારથી આવ્યા છે આપણા રામા મંડળ છે એના રજીસ્ટ્રેશન પણ આ રામદેવડાની જે સમિતિ છે એમાં આપણે કરાવીશું. અવારનવાર બાપુનો લાભ મળે. હવે પછી આપણે બાપુના આશીર્વચન લઈ અને અહીંયા સંતવાણીનો કાર્યક્રમ ચાલુ કરીશું. જે કોઈને આશીર્વાદ લેવાના હોય બાપુ 12-1 વાગ્યા સુધી આપણે ન કહીએ ત્યાં સુધી બેસવાના જ છે. અને એમને તો એવું પણ કીધું કે મને તમે એમ કહેશો તમે બોલાવ્યો છે ગવાણાએ એટલે કાલે રજા આપો તો કાલે, 2 દિવસ પછી આપો તો 2 દિવસ, મહિનો પછી આપો તો મહિનો પછી. મેં તો બાપુ અમારે એટલી બધી વ્યવસ્થા નથી એટલે તમે તમારો પ્રવાસ ચાલુ રાખજો. હવે હું બાપુને આપું છું પૂજ્ય અજય તોમરજી બાપુ. बोलिए रामदेव जी महाराज की. तो गवाना ग्वाड़ से बाहर भी नहीं गई. जोर से बोलोगे रणुजा में आवाज पहुंचे. बोल रामदेव जी महाराज की. हाँ अब पहुंचे सांचौर तक, बॉर्डर तक. फिर भी कोई नहीं, आगे पहुंच जाएगी. मैं धन्यवाद देता हूं चमन भाई सिंधु साहब का कि इन्होंने मेरा परिचय करवाया. थोड़ा बहुत मैं करवा देता हूं. मेरा नाम आनंद सिंह तंवर है. बाबा रामदेव जी की 18वीं पीढ़ी का वंशज हूं. वंशवारो कहते हैं ना. और रामदेव जी की 6ठी पीढ़ी में राजा अनंगपाल जी थे जो पृथ्वीराज जी नाना के, पृथ्वीराज चौहान के नाना. अनंगपाल जी तोमर दूसरे नंबर के, वो दिल्ली पे शासन चाह. उस परिवार में बाबा रामदेव जी का वंश वेला है. तो उससे 18वीं पीढ़ी मैं वंशज हूं. अभी
बाबा रामदेव जी के रामदेवरा में 1770 वंशज मौजूद है, सब बराबर, उसमें से मैं भी एक हिस्सा हूं। और बाबा की कृपा से मैं भारतीय सेना में था और सेना से निवृत्त होने के बाद मैं बाबा रामदेव जी की सेना में आ गया हूं और आप सबका प्यार मिला और दिल इतना खुश हुआ आज गवाना में कि इतनी बड़ी शोभा यात्रा, बहनों फूल बरसा रही है, आरती उतारी है, बहुत जीप में चढ़ाया और पूरा गांव में घुमाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इतना बड़ी व्यवस्था करी संतवाणी, ये 33 जोत पाठ, कितना सुंदर पाठ किया है, इसके लिए भी धन्यवाद। और संक्षिप्त में मैं बताता हूं मेरा काम क्या है। बाबा रामदेव जी के जितने भी हिंदुस्तान में मंदिर है, रामा मंडल है या कथावाचक है कोई, या किसी भी प्रकार का कोई प्रचार करता हो, उन सब का एक संगठन है। उनको सबको एक मंच पे लाना ताकि बाबा रामदेव जी की कहानी, बाबा रामदेव जी का इतिहास, उनके पर्चे सब लोगों तक व्यवस्थित पहुंचे और एक दूसरे का सामाजिक ताना बाना मजबूत हो। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन में कितना बड़ा काम किया कि नहीं तो आज से 650 वर्ष पहले जो विधर्मी लोगों का हमारे सनातन धर्म पे प्रहार हो रहा था, हिंदी समझ में आ रही है, तो उससे धर्मांतरण हो रहा था। तो रामदेव जी ने नानी नानी मंडलियां बनाई और सब जगह भजन मंडलियां करके सनातन धर्म में जागृति फैलाई। वो आज तक तुम्हारे दादा परदादे से वो सतत चालू है। इसलिए ये रामा मंडल है, वो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कि रामा मंडल जो अबण से अबण, अनपढ़ से अनपढ़ मनुष्य है, उसको भी एक नाटक के रूप में बाबा रामदेव जी की कहानी समझा देते हो। इसलिए आज घर घर में बाबा रामदेव जी का पाठ पूजन और जयकारा लग रहा है। जगह जगह देखते तो पंचरंगी नेजा बाबा का जो लगा हुआ है, बड़ी खुशी होती है कि कहीं भी जाओगे, हमारे को भी गर्व है कि बाबा रामदेव जी के हम वंशज है। लेकिन बाबा रामदेव जी के परिवार में कभी न कभी आप सबका भी जन्म हुआ है, इसलिए तुम्हारा न हमारा परिवार का संबंध है। तुम्हारा पहले हुआ और हमारा अभी हुआ, इसलिए हम सब बाबा रामदेव जी के परिवार है। आप सब बाबा रामदेव जी कहो, सनातन कहो, भगवान कहो, कृष्ण कहो, राम श्री राम को, सब एक ही चीज है। लेकिन हमारे को गर्व है कि हमने बाबा रामदेव जी का पल्ला पकड़ा है। और आज 108 एम्बुलेंस होती है ना, तो उसी तरह से बाबा रामदेव जी का हाजरा हजूर है। जब भी याद करो हाजिर हुए, कलयुग का देवता वो एक नहीं हुए, मनोकामना पूरी हुए ना। इसलिए सबको अपने धर्म पर, अपने साधु संतों पर और अपने इस जन्मभूमि पर गर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दब के बैठ जाओ, हमारा धर्म को कोई नुकसान करे, हमारे भाई को कोई त्रास आपे और हमारे धर्म के अंदर कोई भी गलत बातों फैलावे, उन सबको विरोध करो और अपने धर्म को अपने स्वाभिमान से कड़क रहना है, हिंदू धर्म। इसलिए हम हमारी पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को शिक्षित करेंगे और धार्मिक संस्कार देंगे तो ये धर्म आगे चलेगा। आज हम गर्व से सीना चौड़ा करके चलते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतना धर्म को टिका के रखा कि आज हम स्वाभिमान से गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों में अगर हमने संस्कार नहीं दिया तो ये हमारा राष्ट्र, हमारी मातृभूमि कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं भी जाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। इसलिए आप सबको, अपने आने वाली पीढ़ी को धर्म के प्रति जागृत करो। बहुत सारी शक्तियां हैं जो अपने भावी पीढ़ी को धर्म से हटाने की प्रयास कर रही है। इसलिए कोई महात्मा साधु आके तुम सोचोगे पाठ में प्रवचन देगा सुधर जाओगे, ऐसे नहीं सुधरेगा। तुम सबको, माताओं बहनों को और दादा परदादा सब अपने बच्चों को संस्कार डालो और धर्म के रास्ते पे चलने का उनको सीख दो। इसलिए ये हमारी संगठन तो काम करता ही है,
हमारे आदरणीय चमन भाई सिंधु साहब 1996 से मेरे संपर्क में है और इस गुजरात के अंदर हमने छिन्नू के अंदर 50,000 कोળી समाज में जसदण विसिया ये स्वामीना गढ़ड़ा आटकोट ये विस्तार में रात में जाते थे हम और 50,000 बाबा ना लॉकेट गला में करके ना आज वो देख लो जसदण विसिया उस शतरंग गए कोई उस एरिया के अंदर रामापीर हो गया क्योंकि जब तक अपन धर्म को हलाएंगे नहीं कहते हैं ना धर्म लंगड़ा होता है इसलिए धर्म को चलाने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हारे को पता ही आए गांव में पादर में खांबी हुए ना खांबी बोलो क्या बोलते हो पाड़िया पाड़िया होता है ना तुम्हारे गांव में पादर में ये किसके है पूर्वज ने क्या किया था तो धर्म को बचाने के लिए किया था तो अभी भी पाड़िया अभी क्यों नहीं लगता क्योंकि हमने मुंजा ही किया इसलिए हमारे को गर्व से ऊपर रखने का है। हमारे पूर्वजों ने जो पाड़िया बनाया शहीद हुए तो किसके खिलाफ हुए ये सोचने की बात है। कोई हिंदू का आके कोई तलवार नहीं चलाता था। इसलिए ऐसी जो हमारे धर्म के विरुद्ध शक्तियां काम कर रही है उनको पहचानो और अपनी संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास करो। और ये संदेश बाबा रामदेव जी ने दिया था नहीं तो आज 650 वर्ष पहले हमारा हिंदू धर्म लगभग पश्चिमी राजस्थान में तो नहीं रहता और गुजरात भी उसी तरीके से थी। इसलिए बाबा रामदेव जी ने सीधी सरल तरीके से भक्ति बताई। गूगल धूप जो जंगल में खूब होता था अभी तो हुए नहीं हुए लेकिन पहले उस टाइम खूब होता था। चूरमा घी हरेक घरे रोटी घरे हरेक के हुए और खांड गुड़ तो सबके घर हुए। कोई 56 भोग की जरूरत नहीं। 56 भोग करना हुए ना तो कितने लाना पड़े लेकिन रामदेव जी के तो सीधो सड़ बाबा आ बालक न पेट दुखावे से तो आ रोटली चूरमो कर बाबा ने चढ़ाई दो। इसलिए सीधी सरल भक्ति प्रकृति पूजक बाबा ने तरीका बताया। इसलिए आज गरीब से गरीब छोटा से छोटा अज्ञानी से अज्ञानी मानस बाबा रामदेव जी को मानता है। लेकिन आज कलयुग है भौतिकवाद है किसी के पास इतना समय नहीं है लेकिन एक अगरबत्ती के जयकारा लगाना जरूर हमारे घर के अंदर। जैसा आप काम करोगे उसी तरीके से आपकी औलाद चलेगी। आपके घर पे ट्रैक्टर हुए तो ट्रैक्टर कब सीख गया बच्चा आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। होता है ना दर्जी के बच्चे को कभी भी पूछोगे तो सिलाई कब सीखा उसको। किसान के बच्चे ने हल कब सीख लिया कोई खबर नहीं है। और दारू पीने वाले ने उसके बच्चे ने कब सीख लिया बताना पड़ता है क्या। क्योंकि दुनिया के अंदर क्या होता है कि पापा होता है ना वो सबसे बड़ा हीरो होता है। बच्चे के लिए पापा सबसे बड़ा हीरो होता है और पापा कभी खोटा काम करता नहीं। बापू बीड़ी पीवे तो हारी बात से हम पीवा थी ताकत आवे और मारे हीरो बनी जाइए। इसलिए हरेक के पास अपने पहले बच्चे हमेशा कहना नहीं मानते। कभी भी कोशिश करो ने मैंने घनी बहनों के भाई गए बापू आना का हारो करे ने मानतो ज नहीं ने घर में उत्पाद मचावे बड़ो। अरे मैं मारे घरे हूँ पोते उत्पाद मचावतो तो पण उत्पाद मचाने मतलब अपने संस्कार डालो उनको अच्छे। बच्चा कहने से कभी नहीं सीखेगा बच्चा देखेगा वैसा करेगा। इसलिए हम अपने जीवन सुधारे सुबह जल्दी उठे पूजा पाठ करें स्नान पानी करें। इसलिए घर पे ये जो स्कूल है विद्यालय है उस तरीके से अपने बच्चों को क्या हो गया तो ज्यादा प्रवचन की जरूरत नहीं है। वेद शास्त्र और धर्म शास्त्र पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसा रामदेव जी ने बोला सीधा सट वैसा ही करना। घर की साफ सफाई रखोगे तो बेटी दूसरे घर पे जाएगी तो वो घर पे रखेगी। मारवाड़ में कहते हैं देखे आप घर बाप घर करे आप घर। जैसा बाप के घर देखेगी वैसा ही करेगी। इसलिए बेटी बहुत ज्यादा भावुक होती है तो बेटी को संस्कार दोगे तो दो घर सुधारती है। एक बाप का घर सुधारेगी आने वाला भी सुधारेगी। इसलिए सभी को
मेरा ये कहना है कि जो हमारे ऊपर जो सनातन धर्म पे विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हो रही है, लोग गलत गलत तरीके से समझाते हैं, फैशन के नाम पे, कोई लव जिहाद के नाम से, या कोई किसी भी तरीके से अवड़ा रास्ता पाड़े, बरोबर ने? तो हारा रीते रामापीर नो पल्लो पकड़ो और रामापीर ने क्या क्या हालवानो। गुजराती थोड़ी ओછી આવે, પણ જે તમારે બહેનો ભાઈઓ નહીં સમજે ને એને હિન્દી નહીં આવડે ને, અમારે તો કે તમારે ગુજરાતી में કહે છે ને, બોલો ને, તો ગુજરાતી કે બાબા બની ગયા તો હિન્દી શીખવી પડે, તો તમારે તો બાબા જ છો નહીં, જો હિન્દી શીખો. એટલે તમારે જે સાધુ સંતો હોય, તમારા વડીલો હોય, એ લોકો કે એના રસ્તે હાલવાનો. વડીલનો બહુ અનુભવ હોય. जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी. तो अनुभव कौन? हमारे वडीलो, साधु संत, दादा परदादा वडीलो, ये बधा है ना, ये बधा अनुभवी से. ये घणी बधी तकलीफो भोगी छे. एने पाहे क्यांय मोबाइल हतो नहीं, आ फोन लगाड़ी दीधो. बड़ा बड़ा संत जो ने पीपली धाम वाला बापू सवाराम भगत, बलदेव दास बापू, ये अपना जांजरका वाला घना बधा संतो था. ये तो 8-10 वर्ष पछी जावता ने पछी बापा के भाई मारो सेवक हतो गवाणा गाम में, तो के बापू ये तो गया कि एने पाए मोबाइल हतो नहीं. ए परिस्थिति में भी ये लोग संत अपने धर्म ने टिकाई रखे. तो हमणा तो आपणे पासे केटलो फोन छे. हवे ये तमारे अहींया प्रोग्राम में चालतो तो ने ये दिल्ही सुधी ना इंग्लैंड सुधी ना मारा मोबाइल थी गयो. 15 દિવસ पहले तमारे हीरो ने हीरोइन केटला ने प्रचार कर्यो आ पाठ नो, बधा दिल्ही सुधी ने पहुंची गयो ने. आ जेसड़ा ने भाई ने आई गया तो बधा ए प्रचार प्रसार नो साधन होय. तो प्रचार प्रसार नो साधन नो धर्म रीते हारी रीते धर्म में लगावानो. एज मो चाकू होय, छरी होय, ए शाकभाजी कापवानी ने एज कोई ना पेट में घुसेड़ी देने. एनो काम लेवानो संस्कार रीते तमारे जे रीति होय हारी रीति में लेवानो जे काम, ये तमारो काम. मोबाइल के खोटो खोटो कहीं नहीं. हमारे जेवा संस्कार एवी काम लेवानो. इसलिए जैसी साधन है उसको सही उपयोग, समाज के हित में उपयोग करो, धर्म के हित में उपयोग करो. जैसे अगर हमारा पड़ोसी बिगड़ा हुआ है तो कई लोग कहते हैं ना मैंने बिगड़े तो बिगड़े न, वो गंदगी हमारे घर में आएगी, बच्चा सीख के आएगा. इसलिए पहले पड़ोस को सुधारो ताकि हमारा बच्चा नहीं बिगड़े, और खुद का जीवन भी सुधारो ताकि पड़ोस अपना आप सुधरे. ऐसे सुधरते सुधरते हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, कहते हैं ना संत. इसलिए जो धर्म के अंदर काम कर रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सबको सहयोग दो. और सबसे बड़ी हमारी धर्म के नाम पर गौ माता है, उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है. वो हमारी देवी देवता है, उसके अंदर 33 कोटि देवता उसके अंदर वास करते हैं. इसलिए गौ का घी खाने से मेधा शक्ति बढ़ती है. और आज जितने भी हिंदुस्तान में जितने शास्त्र है, ये किसी ने लिखे है तो वो सब गाय का घी खाते थे, गाय का दूध खाते थे. लेकिन आज हमारी गाय, जिसको हम माँ कह रहे हैं, रखड़ती फिरती है, कोई प्लास्टिक खाती है, कोई कत्ल खाने में जाती है. तो वो हमारी माँ है, तो उसकी रक्षा करना भी हमारा फर्ज है. दूसरे से आशा नहीं करो. इसलिए हमारे को बच्चों को गौ माता की रक्षा करना, गौ माता हमारे अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी नींव है. गोबर मिलता है, गौमूत्र से दवाइयाँ बनती है, खाद बनता है, दूध दही, उससे अपनी मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ती है उसका घी खाने से. तो उससे कोई भणतर अच्छा होता है, बड़ा ऑफिसर बनता है, कोई नेता बनता है, कोई धर्मगुरु बनता है. तो समाज को एक गाय के घी और दूध से कितना उपयोग मिलता है, उसके प्रति हमारी सबकी जिम्मेवारी है. और जो हमारी माँ पे अत्याचार करता है वो हमारा दुश्मन. इसलिए हर आदमी को प्रेरणा दो कि गौ माता की सेवा करो, वो बच्चा बड़े, गाय दूध दे. और उसके लिए हमारी फर्ज बनता है, क्योंकि हमारी जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि के लिए गाय बहुत आवश्यक है. और गाय पे हमारी सब कुछ, जो कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु था,
तो विश्व गुरु था तो वो गाय पे आधारित हमारी खेती, हमारा जीवन यापन, ऊट बैठ, पूजा पद्धति सब गाय पे। इसलिए भौतिकवाद के रास्ते को ठीक है, जितना जरूरत है भौतिकवाद भी अपनाइए, लेकिन हमारी जो पुरातन संस्कृति है, हमारे वेद शास्त्र, हमारे देवी देवता, उनका बच्चों को बताओ। फलानी जगह सरा में मेलड़ी माँ है, चामुंडा चोटीला में है, पावागढ़ में कालका माता है, बहुचराई माता जी है, अंबा जी है। छोटी छोटी बच्चों को सिखाओ, क्योंकि हमारा जो अभी विद्यालय स्कूली शिक्षा है उसके अंदर धीरे 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 इसको निकल रहा है। तो तुम स्कूलों के भरोसे अगर रहोगे तो बच्चे कभी धर्म के रास्ते चलने वाले हैं नहीं। इसलिए छोटी छोटी कहानी के रूप में अच्छे सीरियल आते हैं टीवी पे, तो टीवी पे दूसरा नाच गाने की जगह अच्छी चीज देखो। बच्चों को ऐसा प्रेरित करना पड़ता है, साथ में बैठ के देखो। इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि अपने धर्म के प्रति अडिग रहना। अब पादर में पालिया ने कोई जरूरत न थी, पालिया ने कोई जरूरत नहीं थी। एकजुट कलियुग संगठन है शक्ति। गांव नो जूथ हुए, जिले नो जूथ हुए, जाति नो जूथ हुए। तो बाबा रामदेव जी ने क्या बोला था? पहले बंजारे को प्रचार दिया था। बंजारे को प्रचार दिया ना, तो इसका मतलब है कि बंजारे को बोला कि व्यापार में खोट नहीं, व्यापार में खोट नहीं। कितनी बड़ी बात थी। एक हमारे रबारी समाज, वो है ना रबारी समाज, यहाँ बाबू भाई, हमारे बाबा रामदेव प्रचार परिषद हिंदुस्तान में, इसका पाटड़ी का तहसील संयोजक हमारे बाबू भाई है। बहुत लोगों को पर नहीं, रणुजा से सीधी बात हुई, यहाँ आवे પછી यहाँ बदे तुम्हारे फैलावे। तो राई का कोई किसी को अपनी बहन बेटी कोई बीजी जात ने बीजा ने कोई बीजे दूसरे पुरुष के साथ नहीं भेजते, लेकिन रत्ना राई का कितना ईमानदार और कितना विश्वास हुए कि अपने दीकरी ने तेड़वा माटे पुगल के टिकियो। कोई मोकला बीजा मानस ने राई को रबारी કેટલો विश्वास पात्र हुए खरेखर। और हेलो मारो हांभलो रणुजा ना राय, तो गला कापेला हुए ने એને भी पाछा जोड़ी दे, पण विश्वास हुए। अंदर थी हुक निकली सेठाणी नी, नहीं तो निजी तो घना मरे, पण अंदर थी हुक निकले ने ये असर करे। रमापी ने हाजर होकर उसको सेठ को जीवाया। तो बहुत सारे पर्चे हैं। दर्जी ने घोड़ा उड़ाया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, पता है सबको, लेकिन उसको बताया कि भाई तू जो काम करता है, दर्जी को बताया कि कभी भी जिंदगी के अंदर चोरी करी है, उसने भी चोरी करी है। बंजारे ने क्या किया? टैक्स चोरी करी है, उसने कपड़े की चोरी करी है। इसलिए उसको बताया कि भाई बेटा ऐसा चोरी करेगा तो ये गलत है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को, दर्जी को ये सीख दिया कि धंधे के अंदर चोरी नहीं करनी। 24 पर्चे हैं, उसके बाद में हजारों पर्चा है। तुम्हारे कितने संतों को रामदेव जी मिले, कितने पूजा। तो इसलिए घर घर सबने बलिदान दिया है और अपने को भी आगे बलिदान देना है। पालिया की जरूरत नहीं, पण ए बदा पालिया बनी बनी जाओ ने समझो कि आगे पालिया लगावानी जरूरत न पड़े। એટલે તમે જાગૃત થાઓ। આપણે વધારે અમારે કહેવાની કઈ જરૂર છે નહીં। બધા અહીંયા છે ને બેઠા બહેનો ભાઈઓ બધા ભક્તિ વાળા માણસ છે। પોટલી વાળા હવે કદાચ નહીં આવ્યા હવે અહીંયા, પણ પોટલી બી ઓછી કરો તો સારી રહે। ઓછી છે ને એ બહુ સારો। માવો ગુટકો કાંઈ જરદો અરદો કાંઈ ખાવાનો નહીં। મારે અહીંયા આદિવાસી વિસ્તાર છે ને મહીસાગર ને, અહીંયા પહેલા હું ઘણો જ આવતો હતો, હવે તો ઉધરી ગયા બધા। એને હું કહેતો એ બીડી છોડી દો, કે બીડી તો નહીં છૂટાય। તો તારે ભગવાન ક્યાં છે? તો ગાંડે થી ગાંડો માણસ કે ને અહીંયા છે। હવે તું બીડી પીવે આ આંખોમાં જ આવે ને ભગવાન ને, કે હા તો ભગવાન આંધો થઈ જવે। પછી જે ડ્રાઈવર ગાડી હકાવે ને એને પટ્ટી બાંધી દો તો અકસ્માત કરે ને કે કરે તો તારો અકસ્માત થઈ જાય। હવે યા તો રામ ને બહાર કાઢી દે या फिर बीड़ी मूकी दे। तो कि हाँ बात साची बापू। आदिवासी माणस हो ने जबान नो पाको, अपने विचार नो पाको। तो के हवे बापू हूँ मारी बीड़ी छोड़ू तो एक शर्त के आवते वर्षे 3 जना ने छोड़ावाना। आवते वर्ष में जाऊं तो
तो 3 आदमी को हाजिर करे वो, फिर उनको ही वो बोले। ऐसे करके बीड़ी जर्दा सब सिगरेट छोड़ दिया। इसलिए इतनी बात करके मैं अपनी बात को वाणी विराम देता हूँ। आप सब रामदेव राणा जब तक नहीं आओ बाबा रामदेव जी का भजन करना। बोली रामदेव जी महाराज की। ખૂબ ખૂબ આભાર પૂજ્ય શ્રી. હવે સંતવાણીનો કાર્યક્રમ શરૂ કરી આવીશું.